Good morning, dear student. This is our part 3 of the lesson The French Revolution, where we will start our next topic, that is the revolution and everyday life. Means here we will understand the revolution of फ्रांस की क्रांति और लोगों का एवरीडे लाइफ कैसा था. तो जनरली इन दिस टॉपिक we will understand total 5 points. So our first point is various laws were passed by the revolutionary government to practice liberty and equality in everyday life. As we saw, the revolutionary government had taken the power in their hands by decreasing the power of Louis XVI. So various type of laws were passed by revolutionary government to practice liberty and equality in everyday life. Means दैनंदिन लाइफ में लिबर्टी दैट स्वतंत्रता एंड इक्वलिटी मीन्स समानता. तो सभी में समानता हो और सभी को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ट्राइड टू ब्रिंग न्यू एंड बेस्ट लॉज. पॉइंट सेकेंड, censorship was abolished. First, you should understand what is meant by censorship. Censorship means right of kings. उस समय कुछ भी पब्लिश अगर करना होता था, that time we have to take the permission from the king. So censorship was abolished. मतलब राजा के जो अधिकार थे वो अभी abolish किए थे, खत्म किए थे. Point 3. Freedom of speech and expression became a natural right. Now in revolutionary government, freedom of speech, बोलने की स्वतंत्रता and expression, और आपको जो भी बोलने की इच्छा है, जो एक्सप्रेस आप करना चाहते हो, that became a natural right. मतलब एक ये अभी एक आपका एक नैसर्गिक अधिकार बना था. Before means at the time of Louis XVI, as we had seen that only first state and second state people had such type of freedom, and third state people didn't have this type of freedom. So now equality became in speech and expression. Point number 4, views and ideas travel widely into the countryside. Now because of the work of revolutionary government, अलग अलग प्रकार के व्यूज़ और आइडियाज़ गाँव में फैलने लगे, अच्छी अच्छी बातें गाँव में फैलने लगी. नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस दैट कंटेन आइडियाज़ लाइक लिबर्टी, जस्टिस एंड फिलोसफी वाइडली अट्रैक्टेड एजुकेटेड पीपल. जो भी अलग अलग प्लेज थे लिटरेचर में, सॉन्ग्स थे एंड फेस्टिव प्रोसेशन थे दैट कंटेन आइडियाज़, उस सभी में ऐसा लिटरेचर, ऐसा लिखान, राइटिंग आने लगा लाइक लिबर्टी, मतलब सॉन्ग्स के ज़रिए, प्लेज के ज़रिए और अलग अलग फेस्टिव प्रोसेशन के ज़रिए लोग लिबर्टी का महत्व, जस्टिस का महत्व और फिलॉसफी का महत्व सभी एजुकेटेड लोगों तक जाने लगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक the revolution and everyday life. Good morning, dear students. Today we will start our new topic, and name of the topic is Directory Rules France. Means एक एग्जीक्यूटिव का मेंबर का एक डायरेक्टरी, how it rules to the France, that we will understand. Generally in this topic we will understand total 4 points. So our first point is, fall of Jacobians gave way to prosperous middle class to capture power. Means here we will understand that fall of Jacobians gave means after the decreasing power of Maximilian Robespierre, that is a Jacobian club. So after his fall, Jacobians gave way to prosperous middle class to capture power. Means Jacobian क्लब का पावर कम होने के बाद जो फ्रांस के
प्रॉस्परस मतलब रिच मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने फ्रांस का पावर अपने हाथ में लिया. Means first we saw the power was in the hands of Louis XVI, then it went in a constitution by Jacobean Club. Then after the fall of Jacobeans, again the power went in the hands of prosperous middle class in their hands. Second point, new constitutions took away voting rights of non-proprietary sections of society. अब मिडिल क्लास जो प्रॉस्परस मिडिल क्लास था, उन्होंने एक नया राज्य घटना बनाया जिसमें व्हाट दे डिड, दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टुक अवे वोटिंग राइट्स ऑफ नॉन प्रोपर्टाइट सेक्शन ऑफ सोसाइटी. मतलब जो लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं थी, जो लोग अमीर नहीं थे, उनके वोटिंग राइट्स को छीन लिया गया, वापस लिया गया. दिस वाज द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय prosperous middle class of people. Third point, state to have two legislative councils which would appoint an executive made up of 5 members. बाद में ये प्रॉस्परस मिडिल क्लास लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसके अनुसार स्टेट टू हैव टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब फ्रांस राज्य में, फ्रांस कंट्री में जो भी राज्य होंगे वहाँ 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे विच वुड अपॉइंट एन एग्जीक्यूटिव. जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे वह अपॉइंट करेंगे एग्जीक्यूटिव को जो मेकअप ऑफ 5 मेंबर्स, मतलब जो एग्जीक्यूटिव में कितने लोग होंगे, 5 मेंबर्स होंगे. बट slowly what happened, the quarrel started among these executives, and because of that what happened, that we will see in our point number 5, that is it further gave way to Napoleon, a military dictator. मतलब थर्ड पॉइंट में जो एग्जीक्यूटिव बनाया था 5 लोगों का, उनमें और आपस में झगड़े होने लगे एंड इस सिचुएशन का फ़ायदा नेपोलियन ने लिया जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर फ्रांस का बना. तो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस. सो सी डियर स्टूडेंट, हाउ a power started going from one hand to another hand in a France country. Then a day came at last when France became a republic. France became a democratic country. Now we will understand our new topic, and that is rise and fall of Napoleon Bonaparte. Here we will understand how Napoleon Bonaparte became the military dictator of France and how his power decreased. ये पैराग्राफ में, ये टॉपिक में हम ये देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्टी फ्रांस का हेड डिक्टेटर कैसे बना, उसने कौन से अच्छे काम किए और फिर उसका पावर कैसे कम हो गया. इन दिस टॉपिक टोटल 7 पॉइंट वी विल अंडरस्टैंड. सो अवर फर्स्ट पॉइंट, Napoleon Bonaparte crowned himself in 1804. मीन्स नेपोलियन बोनापार्टे ने अपने आप को राजा घोषित किया, सिंहासन पर वह बैठा. वो डेट था, ईयर था 1804. क्वेश्चन कैन कम, व्हेन डिड नेपोलियन बोनापार्टे क्राउन हिमसेल्फ? द आंसर विल बी इन 1804. पॉइंट नंबर 2, he adopted the policy of conquest and creating new kingdoms. Means as he became the military dictator of France, he started conquering the neighboring countries, conquering the neighboring areas, creating his new own kingdoms. मतलब धीरे धीरे वो neighboring areas को और neighboring kingdoms को जीतने लगा. Point number 3, initially he was seen as a modernizers and liberators. शुरू में लोगों को लगा कि नाउ नेपोलियन बोनापार्टे विल इम्प्रूव, मॉडर्नाइज द फ्रांस कंट्री एंड ही विल गिव द लिबरेशन, दैट ही विल गिव द फ्रीडम टू ऑल. पॉइंट नंबर 4, he introduced laws like protection of private property, uniform system of weight and
मेजर्स, बाद में उसने अच्छे अच्छे लॉ बनाए, जैसे कि इंडिविजुअल पर्सन गॉट फ्रीडम to protect his private property, and he also developed new weight systems and measures. Point number 5, later came to be viewed an invader as a invader, मतलब बाद में लोगों ने देखा कि he started increasing his kingdoms by occupying, by having a battle war with अनादर कंट्रीज, मतलब धीरे धीरे वो अपना नेबरिंग कंट्रीज को जीतने लगा और अपना किंगडम्स को बढ़ाने लगा. पॉइंट नंबर 6, ही डिफीटेड इन 1850 एट वाटरलू. वाटरलू नाम का एक प्लेस था जहां पर 1815 में उसका युद्ध में हार हुआ. नाउ लास्ट पॉइंट, हिज मेजर्स वेर फॉलोड लॉन्ग आफ्टर. आज भी उसका जो प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स है, आज भी लोग उसको अपनाते हैं, उस चीज़ को मानते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक rise and fall of Napoleon Bonaparte. So dear student, to understand what we understood today in detail, please watch next video. लाइफ. ओल्ड रिजीम में कोई भी बुक, न्यूज़पेपर या प्ले रिलीज होने से पहले किंग के सेंसर्स के पास जाता था और अगर वो अप्रूव करते थे तभी वो रिलीज होने पाता था. पर डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के बाद सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मिला और इसलिए अब जो भी सेंसरशिप थी वो हट गई और लोग फ्रीली ये सब चीजें पब्लिश कर सकते थे और लोग अपनी बातें गाने, प्लेज या फिर फेस्टिव प्रोसेशंस के थ्रू अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते थे. जब जैकोबिन गवर्नमेंट की फॉल होने लगी तो जो भी रिच मेंबर्स थे सोसाइटी के, उन्होंने पावर्स अपने हाथ में ले ली और फिर वापस से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जिसके पास प्रॉपर्टी होगी वही वोट कर सकते हैं, यानी नो प्रॉपर्टी देन यू डोंट हैव एनी वोट. और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई और इन दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम था मिलकर डायरेक्टरी बनाना, जो कि 5 मेंबर की बॉडी थी. पर लेजिस्लेटिव काउंसिल और डायरेक्टरी में आपस में बहुत लड़ाई होने लगी और जिसका फायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया बाय बिकमिंग द न्यू किंग ऑफ फ्रांस. 1804 में फ्रांस के राजा बने नेपोलियन बोनापार्ट और इसने बहुत सारे एरिया ऑक्यूपाई किए एंड ही केम टू बी नोन एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, क्योंकि उसने बहुत सारे लॉज बनाए फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स पूरे यूरोप में करने का उसने ट्राई किया. तो लोग पहले तो बहुत ही खुश थे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने इतना अच्छा काम किया, बट लेटर ऑन व्हेन दे रियलाइज्ड नेपोलियन तो बहुत ही ज्यादा क्रूअल हो रहा है. बट फाइनली 1815 में इन बैटल ऑफ वाटरलू वो हार गया. Today we will start our new topic, and that is, did women have a revolution? What is the name of the topic? Did women have a revolution? Means here we will understand फ्रांस में जो भी रिवोल्यूशन, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उसमें विमेन का पार्टिसिपेंट था क्या, मीन्स what type of work, what type of field was done by women, that we will understand. So in this topic total 6 points we will understand. So our first point, women actively participated in event that brought important changes in a French society. Means जो भी फ्रांस का क्रांति हुआ था इन 1789 में, तो विमेन जो थे वह एक्टिवली पार्टिसिपेट हुए थे, मतलब जो भी हेल्प मेल को लगता था दैट हेल्प वाज डन बाय विमेन इन दोज पीरियड. सेकंड पॉइंट, टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट दे बिगेन देयर पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर. मतलब उनका जो भी इंटरेस्ट था और जो भी हेल्प उनको करनी थी, तब उन्होंने अपना जो भी इंटरेस्ट है वो सोसाइटी को समझना चाहिए, इसलिए दे स्टार्टेड देयर पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर. मतलब हमने देखे थे जैकोबियन क्लब वाज वन क्लब, ऐसे अलग अलग प्रकार के क्लब थे जहाँ पर विमेन एक साथ आने लगे अपने इंटरेस्ट को, अपने लाइकिंग को, जो भी सोसाइटी में गलत बातें होती थी उसके खिलाफ बोलने के लिए दे स्टार्टेड टू डिस्कस टुगेदर इन different political clubs, and through newspaper also they starting writing different articles
to show their interest in society. Point number 3, being disappointed by the constitutions of 1791, they demanded right to vote, elected to assembly and hold public offices. Dear student, this is very important point. मतलब जब 1791 में बाय द गवर्नमेंट, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसके अनुसार व्हाट हैपेंड, बीइंग डिसअपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, तो बिकॉज ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन the voting right of women was taken by the government, so they demanded that they should get right to vote. मतलब उनको मतदान का, वोट करने का अधिकार मिलना चाहिए. They should be elected to assembly, मतलब उस समय असेंबली में विमेन को इलेक्ट नहीं होते थे, तो उन्होंने ये आवाज उठाया था कि वो भी असेंबली में खड़े होंगे इलेक्शन में. एंड होल्ड पब्लिक ऑफिसेस, और पब्लिक ऑफिसेस में अकॉर्डिंग कंपेयर टू द मेल दे विल आल्सो डू द वर्क. बिकॉज वेमेन को ये बातों में, मतलब वोटिंग करने में या असेंबली इलेक्शन में खड़ा होने में या गवर्नमेंट ऑफिसेस में, पब्लिक ऑफिसेस में काम करने का मना था. बट थ्रू देयर न्यूज़पेपर्स एंड थ्रू डिफरेंट पॉलिटिकल क्लब्स उन्होंने आवाज उठाना चालू किया. Point number 4, revolutionary governments took some steps in favor of women. Compulsory education, schooling, no forced marriages, marriages to be registered, divorce made legal and could be applied for by both men and women, could be trained for jobs and run small businesses. अब इनका आवाज थ्रू द आर्टिकल बाय न्यूज़पेपर एंड बाय पॉलिटिकल क्लब्स ये रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट तक पहुंच गया. और फिर रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ उनको फैसिलिटीज देना चालू किया, जैसे कंपलसरी एजुकेशन या स्कूलिंग वुमेन के लिए कंपलसरी कर दिया. नो फोर्स मैरिजेस, किसी महिला के, किसी गर्ल्स के मर्जी के खिलाफ मैरिजेस नहीं होने लगे थे. मैरिजेस टू बी रजिस्टर, और जो भी मैरिजेस होते थे मेल और फीमेल के, उनका रजिस्ट्रेशन होने लगा कि किसने किसके साथ कब शादी किया. डिवोर्स मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ मेन एंड वीमेन. डिवोर्स लीगली सैंक्शन किया गया दोनों के लिए. मीन्स वेन एवर female will unhappy with a husband, a wife will unhappy with husband, then she legally can take a divorce. Or when a husband will be unhappy with a wife, or when there will be quarrel between two, so both will be free to take the separation, to take the divorce legally. Also women were trained for jobs and run small businesses. तो विद द हेल्प ऑफ रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट उन्होंने कुछ अच्छा काम किया कि विमेन को कुछ अच्छा ट्रेनिंग मिले, so that they can start their own small businesses. Point number 5, movement for equal political rights however continued for next 200 years. तो विमेन को जो भी इनइक्वालिटी थी समाज में उस समय, वो उनको मिले. कंपेयर टू द मेल, आदमी के तुलना में जो भी उनको कम अधिकार मिलते थे वह उनको मिले. इसीलिए अगले 200 सालों तक ये उनका डिमांड फॉर राइट चलता रहा. लास्ट पॉइंट, इट वाज इन 1946 व्हेन वीमेन ओन राइट टू वोट. फिर बाद में जो उन्होंने आवाज उठाया था इनइक्वालिटी के खिलाफ, फिर उसका परिणाम स्वरूप इन 1946 में वुमेन को वोटिंग का राइट मिला. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक, डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन. लास्ट पॉइंट ऑफ द लेसन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दैट इज लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. द मीनिंग ऑफ लेगेसी इज आउटपुट, मीन्स आउटपुट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन. डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम यह देखेंगे कि फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ उसका आउटपुट, मतलब उसका रिजल्ट, उस कारण क्या हुआ. नॉट ओनली फ्रांस बट ऑल्सो ओवर द वर्ल्ड
पूरे विश्व में इसका क्या आउटपुट हुआ वह हम आज देखने वाले हैं। In this topic we will understand 3 points. So our first point is ideas propagated by French Revolution like liberty and democratic rights were widely popular to Europe. Means जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट के आइडियाज स्प्रेड हुए वो पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में फैल गए। मतलब यूरोप कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज हो गए दे अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, क्योंकि लुईस 16 ने लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स को ले लिया था, लोगों को वो ये राइट नहीं दे रहा था। बट व्हेन कॉमन पीपल लाइक थर्ड स्टेट्स came on the road and started struggling against Louis XVI and brought a new republic, brought new democracy in France, फिर इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि बाकी के यूरोपियन कंट्रीज को यह समझा कि we can also raise a voice against inequality, against kingdom. Our point second, colonies got influenced by idea of freedom and worked to get out of foreign captivity. इससे जो भी कंट्रीज के ऊपर जो भी अलग अलग पावर का राज था उनको उन लोगों को ये बात समझ में आई, if we want freedom, if we want release from foreign power, then we can get it. इसके लिए we should come together, we should make unity. इसका महत्व लोगों को समझा। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, पॉइंट नंबर 3, इन इंडिया टू द आइडियाज स्प्रेड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिकेम अ बेंचमार्क टू अटेन फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। व्हेन इन 1789 जब फ्रांस में यह रिवॉल्यूशन चल रहा था, दैट टाइम आल्सो इन इंडिया द ब्रिटिश वर हैविंग अ पावर विथ इंडियंस। मीन्स अपना देश होकर ब्रिटिश यहाँ अपना राज चला रहे थे, अपनी सत्ता दिखा रहे थे। सो थ्रू दिस रिवॉल्यूशन इंडिया आल्सो गॉट अ मैसेज, अगर फ्रांस में लोग राजा के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और वहाँ डेमोक्रेसी को, रिपब्लिक को ला सकते हैं, सो व्हाई इट नॉट पॉसिबल इन इंडिया। मतलब इंडिया को एक प्रकार का मैसेज मिला कि they can also come united and raise a voice against Britisher. So dear student, in this way throughout the lessons we understood that जब भी there will be inequality, when there will be the power of some kingdom or dictator, and when the people would like that they should get a power, they should have a right of voting, they should have equality, तब वो सब बातें जो उनको अच्छी लगती है वो ला सकते हैं। जरूरत होती है यूनिटी की। सो इन दिस वे वी अंडरस्टूड द लेसन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन।